السلام علیکم ناظرین، مونا شاہب حاضر ہے چینل I-95 کے پروگرام آج کی ملاقات کے ساتھ۔ آج کی ملاقات میں جو میزبانی کے فرائض دینے کے لیے میں نے جس دوست کو آج یہاں مدعو کیا ہے ان کا نام ہے زاہد بابر۔ زاہد بابر صاحب کو تعارف میں اس طرح سے کراؤں گی کہ سن 2000 میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک بہت ہی فعال اور خوبصورت تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام تھا ادبی مرکز۔ ادبی مرکز میں ظاہر ہے سارے ادب سے متعلق جو بھی تھے کام ہوا کرتے تھے، اور زاہد بابر صاحب ون آف دا ڈائریکٹرز ہمارے اور فاؤنڈنگ ممبر میں سے تھے، اور جب سے اب تک تواتر کے ساتھ ہم جو بھی ادبی تقریبات کرتے رہے یا کرتے ہیں یا مختلف ادب سے متعلق محفلیں ہم کرتے ہیں، اس میں ان کا ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ آپ پروفیشنلی تو ایک انجینئر ہیں، لیکن دل کے لحاظ سے آپ پیورلی ادب کے بہت بڑے پرستار ہیں، ادب شناس شخصیت ہیں۔ تو اور آج جس شخصیت کی یادوں سے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں وہ کیونکہ ان کو بہت پڑھا ہے زاہد بابر نے، ان کو ان کے فیوریٹ ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ان سے کیوں نہ بات چیت کی جائے۔ تو زاہد بابر صاحب کو میں اسکرین پہ لا کے آپ سے ملاقات کراتی ہوں۔ جناب زاہد بابر جی زاہد بابر صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے فیوریٹ شاعر حضرت جوش کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں، اور جو بھی ہمارے ساتھ منسلک ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ اور جوش صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ظاہر ہے جوش صاحب بہت بڑا صدی کا نام ہے، جو کہ پہلے ہندوستان میں، یوں تو انہوں نے ہندوستان میں ان کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش ان کی ہوئی تھی 1889 میں، جی 98 میں نہیں 1898 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ پھر پاکستان آئے تقریباً 1955 یا 56 کے قریب۔ اس کے بعد سے وہ یہی مقیم رہے، اور اسلام آباد میں فائنلی انہوں نے 1982 میں اس دنیا کو خیر آباد کہا، اور یہیں پر وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لیکن جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی شخصیت اس قدر دبنگ اور اتنی مطلب کہنا چاہیے کہ باوقار شخصیت تھی کہ ان کے لیے بات کرتے ہوئے آپ کو کئی بار سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی غلط بات نہ ہو جائے یا ایسا نہ ہو جائے۔ اسی لیے میں نے سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ لینے کے بجائے زاہد بابر کو انوائٹ کیا یہاں۔ تو زاہد بابر، آپ یہ بتائیے کہ آپ جوش کو جیسے شاعر انقلاب کہا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، جو مین ان کی مشہور ہونے کی وجہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں کہا جاتا ہے شاعر انقلاب؟ بھائی ان کا دراصل جو اسٹارٹ ان کا ہوا تھا وہ تو ایسا تھا کہ وہ شاعر شباب رہے شروع میں اپنی جوانی میں، پھر اس کے بعد وہ شاعر انقلاب بنے۔ اب یہ کیسے بنے میں ابھی اس پر آتا ہوں، اور آخر میں وہ شاعر اعظم رہے۔ تو جب ہندوستان کی جنگ آزادی کے دوران کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ انہیں اپنے ملک میں لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کن مشکلات میں ہیں، تو جو صاحب جو تھے وہ ان کا فلسفہ انقلاب جو ہے وہ ان کے اوپر آ گیا، اور وہ خود انہوں نے کہا کہ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ اور چونکہ ان کی طبیعت میں بہت زیادہ ایک انقلاب اور حریت پسند اور غیرت و للکار تھی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواب کو جذبہ بیدار دیے دیتا ہوں اور قوم کے ہاتھ میں تلوار دیے دیتا ہوں۔ تو جوش کی جو روشن خیالی تھی اور جو انسان دوستی اور وطن پرستی تھی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ ایک حساس انسان تھے، ایک باخبر باشعور شاعر، اور ملک اور سماج کے نشیب و فراز سے پورے طور پر واقف تھے۔ اور ظاہر زبان و بیان کے بہت بڑے شاعر تھے، تو جو شاعری پھر اس کے بعد انہوں نے کی تو اس نے ظاہر ہے ایک بین الاقوامی شہرت حاصل کی، اور ظاہر ساتھ ہی ساتھ وہ ایک آزادانہ سوچ کے بھی حامل شخصیت تھے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، یوں سمجھ لیجئے
کہ اگر آپ یہ ماننا چاہیں, یہ پتہ کرنا چاہیں کہ جوش کی شخصیت ہے کیا, تو میں آپ کی نظر یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ اے شخص, اگر جوش کو تو ڈھونڈنا چاہے, پچھلے پہر حلقہ عرفاں میں ملے گا, اور صبح کو وہ ناظر نظارہ قدرت طرف چمنو صحن بیاباں میں ملے گا, اور دن کو وہ سرگشت اسرار و معانی شہر ہنر و کوئے ادیباں میں ملے گا, اور شام کو سنی, اور شام کو وہ مرد خدا رند خرابات رحمت کدے بادہ فروشاں میں ملے گا, اور رات کو وہ خلوتی کاکل و رخسار بزم طرب و کوچہ خوبا میں ملے گا. تو یہ ہے پوری, سمجھ لیجئے کہ پوری جوش صاحب کی جو پوری پرسنالٹی ہے وہ ان شعروں میں, ان اشعار میں مطلب بن گئی ہے, بیان ہو گئی ہے, جس میں ہر چیز ہے, واضح ہو گئی ہر چیز. جہاں تک یہ ہے کہ ان کی قادل الکلامی, ان کا جذبہ, اور ان کے اوپر جو آفریدی پٹھانیت تھی, اس میں ایک باغیانہ نظمیں جو انہوں نے لکھی ہیں اس میں خاص قسم کا جوش تھا. یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی آپ سے, زاہد کی کیونکہ وہ ذات کے پٹھان تھے, تو ان کے اندر سنا ہے کہ غصہ اور وہ دبدبا وہ بھی بہت تھا, بہت جلدی انہیں مطلب غصہ آ جاتا تھا, تو ظاہر ہے وہ اپنے جی بولیے. نہیں, میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ان کے اندر یہ تھی بات کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ شاعر بھی سمجھتے تھے. مثلا جیسے انہوں نے کہا کہ گرداب میں ہم بسد خوشی جاتے ہیں, یوں جھوم کے مرتے ہیں کہ جی جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم وہ ہو سمندر جنہیں کھا جاتا ہے, ہم وہ ہیں سمندر کو جو پی جاتے ہیں. تو یہ صحیح بات ہے. اور جی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں شاعر آخر الزماں ہوں. یعنی یہ وہ جو ہے ان کی کانفیڈنس کی بات تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہی, اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنے کانفیڈنٹ تھے, اپنے اوپر خود بہت فخر کرتے تھے. جی, وہ انہوں نے کہا کہ ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں, اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی. تو اس سے کم وہ نیچے اترنے کو تیار نہیں تھے, اور واقعی میں جو ان کی اردو تھی, جو ان کی للکار تھی, جو ان کی شاعری تھی, جو ان کے شاعر انقلاب والی جو شاعری تھی, وہ ایسی ہی تھی. کہتے ہیں نا کہ آتے ہی جو میں تجھ پہ نہیں چھایا ہوں, میں جوش کو ہمراہ نہیں لایا ہوں, ہاں شکر بجالا کہ میں تیرے در پر شبیر حسن خاں کی طرح آیا ہوں. تو یہ ان کا تنتنا تھا. اور جو انہوں نے لکھا اس زمانے میں کہ جب انگریزوں کے خلاف لکھتے تھے, تو اس میں انہوں نے لکھا کہ کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پر جو قفل لگایا کرتے تھے, ایک روز اسی خاموشی سے ٹپکیں گی دہتی تقریریں, سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا, جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گئے, اٹھو کہ وہ بیٹھی دیواریں, اور دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں. دیکھیے کہ کتنی یعنی اس کے اندر للکار ہے, اور کتنا ایک دبدبا ہے اور ایک گونج ہے. تو اور یہی جو ان کی شاعری تھی, اس کو بعد میں ہمارے جو نئے شعراء تھے وہ انہوں نے بہت انہوں نے بھی فالو کیا. اور اس میں اچھا, زیادہ تر تو ظاہر ہے جب انہوں نے شاعری کی ابتدا کی وہ اس وقت ہندوستان میں تھے, اور ہندوستان میں ان کی بڑی قدر ہوتی تھی. اب آپ اس تصویر میں دیکھیں, یہ نہرو صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک محفل میں, اور شعر کی محفل ہے, اور وہاں بلکہ ان کو ان کی شاعری کی بنیاد پہ جو ہے پدم شری ایوارڈ سے بھی, جو اتنا بڑا ایوارڈ ہے, اس سے نوازا گیا. تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے یہ رتبہ حاصل. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب جیسے وہ ان کے اوپر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ بھئی یہ مذہب کی طرف نہیں تھے, تو آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات انہوں نے مذہب کے بارے میں کی ہے. وہ کفر پہ تکرار کیے جاتا ہے, وہ کفر پہ تکرار کیے جاتا ہے, یہ دین پہ اصرار کیے جاتا ہے. ایک عمر سے انکار پہ مائل ہے دماغ, ایک عمر سے انکار پہ مائل ہے دماغ, اور دل ہے کہ اقرار کیے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو اور انہوں نے اپنی جو انہوں نے داستان جو یادوں کی بارات کی صورت میں
जी उसमें हमें दी है। वो एक ऐसी किताब थी कि एक अरसे तक वो कंट्रोवर्शियल भी रही। बिल्कुल, अब आज जब तक है, बरात आज तक है। जी। और वो यही दुनिया को समझाना चाह रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ ये है कि ये दुआ कर लो तो ऐसे ये हो जाएगा वैसे, तो वो यही कहते हैं कि तुझे इससे ज्यादा कोई समझा ही नहीं सकता, तुझे इससे ज्यादा कोई समझा ही नहीं सकता, खुदा वो है जो हद अक्ल में आ ही नहीं सकता। क्या बात क्या बात है। अब आप देखें कि कितनी यानी कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला पर भी है, जी। और उनसे वो उस तरह की भी वो बात कर लेते हैं कि अल्लाह ताला को मैं यूं हिला दूंगा, मैं उनको मजाक में जो भी कहना है वो कह भी देते हैं। और जो और इसी में जो उनकी शायरी की जो खूबसूरती थी, वो जो इंसान दोस्ती है मोना, जी। उसमें जैसे वो कहते हैं ना कि ए दोस्त दिल में गर्दे कुदूरत न चाहिए, जी। ए दोस्त दिल में गर्दे कुदूरत न चाहिए, अच्छे तो क्या बुरे से भी नफरत न चाहिए, बिल्कुल। कहता है कौन फूल से रगबत न चाहिए, कांटे से भी मगर तुझे वहशत न चाहिए, और कांटे के हकीकत में रग देखा में। जाए तो जी, हाँ, हकीकत में वो शायर यानी एक मुसव्विर भी थे, शायरी जबरदस्त। कहते हाँ, जी। जबरदस्त। और कांटे की रग में भी है, कहते हैं कि कांटे की रग में भी है लहू सब्ज़जार का, और पाला हुआ है वो भी नसीम बहार का। वाह आप वाह, देखिए सुभान अल्लाह। कितनी जी। यानी मतलब इंसान दोस्ती जो है वो मतलब ऑन द टॉप है उनके उसमें फलसफे इनकलाब में। जी जी। और उनके ज़ाहिर है जैसा कि ज़िक्र आपने किया था कि उनके वालिद जो थे जी नवाब बशीर अहमद भी शायर थे, शायर थे तो उनके उनका भी दादा उन्होंने नवाब असर। अहमद खान, दादा वो शायर थे, और हजरत गोया परदादा वो भी शायर थे। जी बिल्कुल सही। तो अब शायरी की बात चल रही है तो हम चाहेंगे कि इस मौके पे कोई उनकी शायरी भी सुनते चलें। जी तो बिल्कुल। बहुत ही एक खूबसूरत उनकी नज्म समझ लें या हम्म, मसनवी है, ये तो हम्म, हमें अभी सुन के पता चलेगा। हम्म, और ये जो है बहुत ही मुझे मुझे भी पसंद है, और मुझे यकीन है कि हर सुनने वाले को ये जरूर पसंद जी होगी इनकी। जी तो ये हमने इसके लिए अपने बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत खूबसूरत शायर, जी कैलिफोर्निया में मुकीम है, इरफान मुर्तजा, उनसे दरख्वास्त की थी कि वो हमें ये नज्म पे मतलब हमें हमारे लिए भेजें। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत आवाज में अपनी ये नज्म पेश की है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इरफान मुर्तज़ा। आज आप सबकी खिदमत में जनाब जोशमाली आबादी की एक बहुत खूबसूरत नज़्म गुलबदनी पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ओवर द इयर्स इस नज़्म में कुछ मिसरे ऊपर नीचे हुए, कुछ तबात में लोगों ने कुछ चेंजेस कर दी। ओवर द इयर्स जोश साहब ने भी कुछ इसमें तब्दीली की, तो मुमकिन है कि कुछ मिसरे आपको इधर उधर नज़र आएं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि ये नज़्म आप तक पहुंच जाए। तो पेश करता हूं गुलबदनी। कि किस दर्जा फसूंकार अल्लाह गनी है, किस दर्जा फसूंकार अल्लाह गनी है, क्या मौजे ताबिंदगी सीम तनी है, आवाज अंदाज है या जज्बा एक गर्दू जदनी है, आवाज है या जलजला सीना जनी है, सावन की सिया रात है या जुल्फ घनी है, क्या गुलबदनी 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 है। ये लय है कि खिलती हुई गुंचे की कमानी, महका हुआ ये तन है कि ये रात की रानी, लहजे की ये रौ है कि बरसता हुआ पानी, लर्जिश में ये बेशगां है कि परियों की कहानी, ये सुर्खी ये लब है कि अकीक़े यमनी है, क्या गुलबदनी 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 है। मेहराब है रुखसार के परतों से पुरफ्शां, जुल्फों में शबे तार है आंखों में चिरागा, मेहंदी की सजावट की हथेली पे गुलिस्तां, या हल्क़े उशाक में है चेहरे ताबा, या खातिम ताबिंद पे हीरे की कनी है, क्या गुलबदनी 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 है।
सीने पे ये पल्लू है कि एक मौज हबाबी, सीता है कि एक सुबह का परतो है शहाबी, पैकर है कि इंसान के सांचे में गुलाबी, आंखें है कि तूफान में दो मस्त शराबी, गेसू है कि एक दजलाए मशके खतनी है, क्या गुल बदनी गुल बदनी गुल बदनी है। और काकुल में दरख्शां है पेशानी रख्सा, या साया जुल्मत में है एक चश्मे हैवा, हाथों पे है चेहरा के ये रहल पे कुरान, और चेहरा गुल रंग में गलता हो रोशा, रखशंदगी है खून रगे या समनी है, क्या गुल बदनी गुल बदनी गुल बदनी है। अश्वे हैं कि एक फौज खड़ी लूट रही है, छलबल है कि छाती को जमी कूट रही है, अंगड़ाई का खम है कि धनक टूट रही है, मुकड़ा है कि पर्वत पे किरण फूट रही है, कामत है कि बरनाई ये सर्वे चमनी है, क्या गुल बदनी गुल बदनी गुल बदनी है। खिलवत में वो तस्लीम है जलवत में तहक्कुम, खिलवत में वो तस्लीम है जलवत में तहक्कुम, साहिल पे सुबक फौज सफीने में तलातुम, हुजरे में खामोशी है शबिस्ता में तकल्लुम, खेमे में तुनक आए खयाबा में तरन्नुम, आगोश में तलवार है घूंघट में बनी है, क्या गुल बदनी गुल बदनी गुल बदनी है। हर नक्श कदम पर है फिदा ताज के आनी, हर गांव में है चश्मे कौसर की रवानी, हर एक बन मुंह से उबलती है जवानी, उठती है मसामात से यूं भाप सी धानी, गोया कोई महकी हुई चादर सी तनी है, क्या गुल बदनी गुल बदनी गुल बदनी है। आंखों में है ये कुफ्र के ईमान है मेरा, आरिस पे है ये खाल के हूरों का है डेरा, पलकों की है ये छांव के मस्ती का सवेरा, रुख पर ये लटे हैं कि धुआंधार अंधेरा, कामत पे ये मुखड़ा है कि नेजे की अनी है, क्या गुल बदनी गुल बदनी गुल बदनी है। और है कि जिस तरह धुंधलके में हो एक रंग सा गलता, जैसे कि सहर कुंज में आहिस्ता खरामा, जिस तरह उड़े बाम पे जरबफ्त का दामा, जैसे कि धुआं औद का मंदर में परेशान, रुखसार पे यूं सुबह की आजाद चिकनी है, क्या गुल बदनी गुल बदनी गुल बदनी है। और इस सिन में भी पड़ती हैं हसीनों पे निगाहें, इस सिन में भी पड़ती हैं हसीनों पे निगाहें, कदमों के तले अब भी जवानी की है राहें, अब भी ये तमन्ना है मिलें फूल सी बाहें, असनाम को मुमकिन है कि हम जोश न चाहें, घुट्टी में पड़ी आशिकियो बरहमनी है, क्या गुल बदनी गुल बदनी गुल बदनी है। बहुत बहुत नवाजिश, शुक्रिया। देखा आपने कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पढ़ा है, और कलाम तो माशाल्लाह है ही, और ऐसी ऐसी अल्फाज उर्दू और फारसी के और सब मिक्स करके जो उन्होंने ये नज्म तख्लीक की, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। मैं तो बहुत इनको पसंद करता हूँ, और ख़ास तौर से मैं शुक्रिया के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जनाब आपकी जो नज़्म है मवाज़िना, वो मुझे इतनी पसंद है कि मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, लेकिन चूंकि हम जोश पे बात कर रहे हैं तो लेट्स कम बैक टू जोश। जी, तो जोश का जहाँ तक हम ये सिलसिला चल रहा है आजकल, हर कोई जो है अदब से मुतालिक जो भी लोग हैं, और ख़ास तौर पे जो टीवी प्रोग्राम करें, सब ने ही जोश को जो है सराहा है अपने प्रोग्राम्स में, और बड़ी बड़ी शख्सियात ने जोश पे बात की है, और बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं कि जिन्होंने जोश पे कई किताबें लिखी हैं। तो आज अपने प्रोग्राम को, और जोश की जो शख्सियत थी वो डिमांड भी यही करती है कि उस पे जरूर जितना भी लिखा जाए वो उसकी जरूरत बाकी रहेगी हमेशा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जोश पर आज कुछ कहने के लिए हमने जिस शख्सियत को जहमत दी है, मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। आप कराची में मुकीम हैं, लेकिन आपने बहुत
जहमत की। हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि सर आप ज़रूर कुछ जोश के लिए जो है यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में कह दें। तो उन्होंने कहा कि वो जो भी मतलब हो सकेगा वो ज़रूर करेंगे हमारे लिए। हालांकि वो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन बड़ी मेहरबानी है डॉक्टर हिलाल नकवी साहब की कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। कुछ हिस्सा तो मैं अब आपको यहाँ किसी भी ज़बान के शायर पर गुफ्तगू जो है वो कभी भी किसी एक मजमून में करना मुश्किल हो जाती है, ताकि हम चंद महदूद वक्त में बात करें, और वो भी जोश जैसे शायर के ऊपर। उर्दू में अपने मौज़ूआत के तनव्वुर, अपने फैलाव और अपने फ़िक्री जो उनका एक वुसअतों का सिलसिला है, उसमें बहुत मुश्किल है कि हम किसी एक ही ज़ाविये से उनको परख तो लें, लेकिन मुसलसल उनके तमाम अफकार को नहीं लिया जा सकता। फिर जोश साहब एक ऐसे शायर हैं कि जो बहुत तज़ाद और बहुत ही मौज़ूआत के फैलाव की वजह से तय दफ्ता है उनका सिलसिला है। देखिए मीर तक़ी मीर के बारे में एक राय तय है कि वो हिजर के और इश्क के शायर है, विसाल उनके उस तरह नहीं है, एक रास्ता मुतय्यन है। इसी तरह इकबाल की फिक्र तय है, इकबाल के बारे में बहुत आराम से ये राय कायम की जा सकती है कि वो किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं। एक लेते कि गालिब है कि जिनके यहाँ फिक्र का रास्ता मुतय्यन करना मुश्किल हो जाता है। चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राहरों के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी रह गुजर को मैं। जोश गालिब के बाद दूसरे आदमी हैं कि जिन्हें सिरात मुस्तकीम पे उनकी फिक्र नहीं मिलती है, या सिरात मुस्तकीम से मुराद कोई नेकी और बदी के तसव्वुर से नहीं है। इस बात से है कि उनके यहाँ बहुत मौज़ूआत का फैलाव है, यानी एक तरफ उनका इनकलाब है, दूसरी तरफ उनके सियासत है, फिर उनके मजहब है, फिर उनके नाते हैं, मरसिए हैं, रुबाइयात हैं, और एक तरफ शराब और शबाब की बातें हैं। तो बहुत मुश्किल है जोश साहब को चंद एक बहुत महदूद गुफ्तगू में समेटने की बात। किसी ने जोश साहब से ये बात पूछी कि जोश साहब आप किस शायर को बड़ा शायर समझते हैं? तो आज के अहद में जो शायर बैठा हुआ है और उससे ये सवाल किया जाए कि वो किस शायर को बड़ा शायर कहता है, तो लोग गालिब का नाम लेंगे, मीर का लेंगे या और। लेकिन जोश ने कहा कि नज़ीर अकबर आबादी बहुत बड़ा शायर है। उसकी वजह कि नज़ीर अकबर आबादी के जो फैलाव है, जो उनके यहाँ तहदारियाँ हैं, और जो पेज दर पेज बल्कि खम बखम जो सिलसिला है, वो जोश को बहुत सूट करता है। जोश साहब के बारे में अकबर आबादी ने उनके पहले शेरी मजमे रूह अदब में जो राय दी है, उसका पहला सेंटेंस ये है कि जोश मुसव्विर जज्बात है। देखिए चलिए हम इसी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है सब बातों को समझना। जज्बात की पेंटिंग करने वाला जोश साहब लफ्ज़ों के ज़रिए, किसी बुरुश के ज़रिए से नहीं, वो लफ्ज़ों से तस्वीरें बनाती है। उन्होंने कहा भी एक गुफ्तगू में कि मुझसे ज़र्रा पुकार के कहता है कि हमें शेर में डाल दे। वो बहुत बड़े मुसव्विर हैं। पूरी इंसानी जज्बात, जैसे मैंने अर्ज़ किया, मजहबी जज्बात, सियासी जज्बात, इश्क, विसाल, जिनसियात, कोई भी जज्बा है उसको जोश साहब मुसव्वरी में डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए मिसरा है उनका ज़िंदगी के हवाले से, जिंदगी मुड़ते हुए पत्तों पे बूंदों की खनक। एक सादा सी बात हो सकती थी कि जिंदगी पत्तों पे बूंदों की खनक है, लेकिन जोश साहब कहते हैं जिंदगी मुड़ते हुए पत्तों पे बूंदों की खनक। ये बहुत बड़ी पेंटिंग है, और ये शायर ही कर सकता है कि हवा में गिरा डाल दे, या फूल की जो एक पंखड़ी है, उस पंखड़ी की हजार पंखड़ियाँ अपनी शायरी में बना लेते हैं। उन्हें जो कहा जाता है, जो कि गलत उन पर तनकीद की गई कि वो लफ्ज़ों के शायर हैं, ऐसा नहीं है। हर लफ्ज़ में एक माना है। अनीस ने कहा था कि एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से मालूम। जोश साहब इससे भी आगे सफ़र कर जाती हैं, और उनके यहाँ एक फूल का मजमून इतने रंग बदल लेता है। उनकी नज़्म है जिंदगी बागेसरी, सारंग दीपक सोहनी, पंखड़ी तितली सनोबर, दूर नसरी चांदनी, बुत तराशी, रक्स मौसीकी, खिताबत शायरी, लाजवर्दी, शरबती धानी, गुलाबी चंपई। यानी मालूम होता है जिंदगी का सफ़र थम नहीं रहा। तो और फिर एक बात ये कि वो इस एतबार से
उर्दू में सबसे जुदा आदमी है कि वो निशातिया लहजे के शायर हैं। फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि उर्दू शायरी को निशातिया लहजा सूट नहीं करता, उसे हिजर सूट करता है। शायर आमतौर पे महबूब से हिजर को बहुत लिखते हैं। जो साहब निशात के शायर हैं, और ये बहुत मुश्किल है इसको समझना कि यह निशातिया आग से क्या मुराद है। ये कोई मसखरा पर नहीं है, बल्कि एक तरह से जिंदगी की सच्चाइयों को जो है वो कैमरे की आंख से देखते हैं वो। और एक कैमरा जैसे एक ही चीज़ को 150 जगह से नए खदो खाल के साथ सामने लाता है। जोश की शायरी इसी तरह की शायरी है। फिर ये कि उनके यहाँ जो एक खूबी देखने में है, मैंने अर्ज़ किया कि बात करते हैं दिक्कत होती है कि किस तरह इस बात को समेटा जाए। कम वक्त में कभी कभी ये होता है शायर के सारे पहलू जो है वो अधूरे रह जाते हैं। जोश साहब के ये मामला है, उनकी शख्सियत में एक अजीब तरह का तजाद है। बहुत मासूम आदमी जिन्होंने जो उनसे मिले हैं, बहुत ही बागियाना सरिश्त के आदमी। अब देखिए उनके शेरी मजमू के नाम देखिए, शोला और शबनम, फिक्र व निशाद, महराब व मिज़रात, आयात व नगमात। एक तजाद है मौज़ूआत में। यही जोश की फिक्र में है कि एक तरफ धूप भी है, फिर छाँव भी है, फिर जिंदगी के बहुत दर्दअंगेज पहलू भी हैं। इंसानियत उनका बहुत बड़ा मौजू आ जाता है। और तमाम इकबाल ने तो एक ख़ास जाजिए को लिया है, और लेकिन जोश साहब जो है पूरी इंसानियत को लेके आते हैं। इंसान उनकी शायरी का सबसे बड़ा मौजू है। ये मैं जसारत कर रहा हूँ ये कहने की कि कुरान हकीम का मौजू इंसान है। जोश की शायरी भी इंसान की बायोग्राफी है। खुसूसन 20वीं सदी की तहजीबी सवाल हयात उनके मिलेगी। इतना बड़ा शायर, पूरी 20वीं सदी को अगर पढ़ना हो तो जोश साहब की पूरी शायरी को पढ़ लिया जाए। 1920 में पहला मजमू आया, 1982 में उनका इंतकाल होता है, और बाद में महराब व मिज़रात शाये हुई। मैमुन जरस गैर मतबूआ है, हर्फ आखिर तवील तरीन नज़म। एक ऐसा शायर है जो बिल्कुल ही चला जा रहा है, और जो ज़िंदगी के तमाम जावियों से में एक राय कायम कर देते हैं जोश साहब। ये जोश साहब पे खासी तनकीद भी हुई है कि उनके यहाँ फिक्र किसी एक रास्ते पर नहीं है। ये तजाद नहीं है, बल्कि ये वो शख्स जो जिसकी बसीरत बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वुसअत निगाह बहुत हो, वो दूर तक देखता है। ये चीज़ जोश साहब की है। तो जोश की शख्सियत, जोश की शायरी 20वीं सदी की सवाल हयात का दर्जा रखती है। मैं समझता हूँ कि कम वक्त में इतनी ही बात की जा सकती है, बहुत मुश्किल है। एक जोश साहब पे प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन ने कहा एक जगह कि जोश साहब पे एक मजमून नहीं, कई किताबें लिखने की ज़रूरत है। आपने कितनी सैर हासिल गुफ्तगू थी। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। जाहिद मैं यही देख रही थी कि ये जो स्कॉलर्स होते हैं माशाल्लाह, जी वो किस कदर अपने अंदर समो लेते हैं कि उनका जो पूरा वो है, हम तो उनकी गर्द को नहीं पहुंच सकते। उन्होंने थोड़े से वक्त में कितने पहलू जो हैं अपनी बातों से वाजे कर दिए। हाँ, उन्होंने एक बड़ी मैं बहुत I-95 की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना वक्त दिया हमें और इतनी खूबसूरत बातें जोश से मुतालिक हमें बताई। उन्होंने जो जोश साहब की, आपने एक दफा और भी कहा था कि उनकी अदबियात, जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे, तो देखिए एक है कि जिसमें एक एक लफ्ज उन्होंने जो कहा है कि वो है कि खून सफ़ा की गरज, तूफान बर्बादी कताल, बर्छियां भाले कमाने तीर तलवारें कटार, बैरकें परचम अलम घोड़े पियादे शहसवार, शोर गुगा गुलगला फरियाद वैवाला फुगा, आंधियां तूफान तलातुम सेल सरसर जलजले, उतरी वहशत तनतना दहशत, और दबदबे गर्मी कशाकश दगदगे हलचल। यानी ये चली जा रही है एक एक लफ्ज की। इसी तरह उनकी वो वोकैबुलरी देखें जी, और एक एक ऐसी शायरी है कि जिसमें दो दो लफ्ज हैं, दो दो लफ्ज की पूरी है। खेत महके अबरुन मचला, फूल महके दिल खुले, यानी दो दो का पूरी, और तीन तीन की भी है। तो इस शख्स के पास ऐसा है कि जो लोग कहते हैं ना कि अल्फाज हाथ बांधे खड़े हैं, तो हाँ वाकई में हाथ बांधे खड़े हैं।
हाथ बांधे खड़े रहते थे उनके सामने, इसमें कोई शक नहीं। और तो एक बात हमें इनको बस ये कहना चाह रहा था कि जरा सा टच कर लें कि इनका जो प्राइम टाइम था अपने वक्त का, जिसमें इन्होंने बहुत अदब पे बड़ा काम किया, वो उनका वो वक्त था जब वो हैदराबाद दक्कन में थे, दारुल तर्जुमा में थे, और वहां पर पूरी यूनिवर्सिटी की हर तरह की किताबों की उन्होंने उर्दू में जो तर्जुमे किए थे। उसके बाद जब जोश साहब से पूछा गया कि भाई आपका वक्त वहां कैसे गुजरा, तो देखिए वो क्या कहते हैं मोना, कि शायद पलट आए जिंदगानी मेरी, फिर गूंज उठे तराना खानी मेरी, मैं खाके दकन निचोड़ कर तो देखूं, शायद टपक पड़े जवानी मेरी। क्या बात है। तो जो साहब मतलब उनकी उसमें देख लें आप। हाँ माशाल्लाह। और वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच के भी माशाल्लाह खासे रंगीन हाँ, मिजाज थे। अभी कोई याद होगा उन्होंने क्या कहा था कि माशूक कहे आप हमारे हैं बुजुर्ग, हाँ। वो दिन हमें हरगिज न दिखाना या रब, ये भी कहना पड़ा कि जीती रहिए, और ये भी सुनना पड़ा कि बाबा तस्लीम। तो वो मरते मरते भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत जबरदस्त था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और जिसको कहते हैं ना कि इश्कबाजी, और उसके अंदर एक खूबसूरती लाना, कि कहते हैं कि जाने वाले कमर को रोके कोई, शब के पैके सफर को रोके कोई, जाने वाले कमर को रोके कोई, शब के पैके सफर को रोके कोई, और थक के जानों पे वो सोया है अभी, रोके रोके सहर को रोके कोई। क्या बात है, क्या बात है। और जाहिर ये है कि जाहिर है इतने कम वक्त में उनकी शख्सियत को, तमाम तर पहलुओं को समेटना हमारे बस की बात नहीं है। वो एक समंदर है और हमेशा अदब में वो जिंदा रहेंगे, जा चुके हैं लेकिन जिंदा रहेंगे जैसे और बड़े शायर। और वो उस फहरिस्त में आते हैं कि वो ऐसे लोग समझे कि ताहयात आपके दिल पे नक्श हो जाते हैं। अदब का बहुत बड़ा नाम जोश मलिया आबादी को हमने एक छोटा सा एक ख्राज तहसीन पेश किया था, और मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने I-95 को वक्त दिया और अपनी मालूमात फराहम की। तो अब इजाजत चाहेंगे अपने नाजरीन से, और इंशाल्लाह इसी वादे पे इजाजत चाहेंगे कि हम फिर किसी शख्सियत को, अदब की या फाइन आर्ट्स की कोई भी ऐसी शख्सियत कि जिन्हें पढ़कर, सुनकर और देखकर हम फख्र महसूस करें, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।